हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीसी आर्ट्स एंड कॉमर्स पर। बाय द वे, मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर 3 कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस मैं समझाऊंगा, ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ए, कॉस्ट। कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering services. Cost in simple words means the total of all expenses. Cost is also defined as the amount of expenditure, actual or notional, incurred on, attributable to given thing or to ascertain the cost of given thing. Cost का मतलब है बच्चों, सिंपल शब्दों में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस देने में जो टोटल खर्चा होता है उसे कॉस्ट कहते हैं। टेक्निकल भाषा में ये उन रिसोर्सेज का मॉनेटरी मेजरमेंट है जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुए हैं। इसमें एक्चुअल खर्चे और नोटेशनल माना हुए खर्चे दोनों शामिल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, मान लीजिए आप एक पेन बना रहे हैं। प्लास्टिक, इंक और मजदूर की मजदूरी का कुल खर्चा 10 रुपया है, तो 10 रुपया उस पेन की कॉस्ट है। बी, cost unit. Cost unit is a device for the purpose of breaking up or separating costs into smaller subdivisions attributable to products or services. Cost unit can be defined as a unit of product or service in relation to which costs are ascertained. The cost unit is the narrowest possible level of cost object. It is the unit of quantity of product, service of time or combination of these in relation to which कॉस्ट में भी ascertained और expressed। अब बात करते हैं बच्चों कॉस्ट यूनिट की। ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम अपनी कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। ये प्रोडक्ट्स या सर्विस के हिसाब से अलग अलग होती है। इसका एग्जांपल है बच्चों, अगर आप शुगर, चीनी बेच रहे हैं तो कॉस्ट पर किलोग्राम या पर टन में होगी। अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो पर किलोमीटर। सी, कॉस्ट सेंटर। CIMA defines a cost center as a location, a person or an item of equipment or a group of them in or connected with an undertaking in relation to which costs are ascertained and used for the purpose of cost control. Typically, cost centers are departments, but in some instances, department may contain several cost centers. These cost centers are the departments or sub-departments of an organization from which cost is collected for cost ascertained and cost control. Cost centers are of two types, personal and impersonal cost center. A personal cost center consists of person or group of persons. An impersonal cost centers consist of a location or item of equipment or group of equipment. In a manufacturing concern, the cost centers generally 1. Production cost center. These centers are engaged in production work, that is, engaged in converting the raw material into finished product, for example, machine shop, welding shops, etc. 2. Service cost center. These centers are ancillary to and render service to production cost centers, for example, plant maintenance, administration, etc. कॉस्ट सेंटर का मतलब बच्चों, कॉस्ट सेंटर एक ऐसी जगह, व्यक्ति या मशीन है जिसके लिए हम अलग से खर्चों का हिसाब रखते हैं ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। ये दो तरह के होते हैं, पर्सनल जैसे कोई मैनेजर या सुपरवाइजर, और इम्पर्सनल जैसे कोई बिल्डिंग या मशीन। मैन्युफैक्चरिंग में इसके दो मेन टाइप्स है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जहाँ काम होता है जैसे मशीन शॉप, और सर्विस कॉस्ट सेंटर जो हेल्प करते हैं जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। डी, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। Profit center is defined as a segment of the business entity by which both revenues are received and expenses are incurred or controlled. Such revenues and expenditure are being used to evaluate segmental performance as well as managerial performance. Profit center का मतलब बच्चों, प्रॉफिट सेंटर
बिजनेस का वो हिस्सा है जो रेवेन्यू जनरेट करता है और खर्चा भी करता है। इसका एम प्रॉफिट परफॉर्मेंस चेक करना होता है। ई कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज द टेक्निकल नेम फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, a project, a department, or an activity to which a cost relates. In other words, if the user of accounting information wants to know cost of something, this something is called cost object. For examples, cost of product, cost of rendering service. कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है बच्चों, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसके लिए आप कॉस्ट जानना चाहते हैं, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या कोई प्रोजेक्ट। एफ कॉस्ट ड्राइवर। ए कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर दैट क्रिएट्स और ड्राइव्स द कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी। इट इज अ रूट कॉज ऑफ व्हाई पर्टिकुलर कॉस्ट ऑकर्ड। एग्जांपल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स: नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, number of items distributed, number of sales personnel. Any change made in any of the cost drivers will cause change in the total of cost. कॉस्ट ड्राइवर का मतलब बच्चों, कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर है जिसकी वजह से खर्चा बढ़ता या घटता है। ये खर्चे की जड़ रूट कॉज होती है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, जितने ज़्यादा यूनिट्स आप बनाएंगे कॉस्ट ड्राइवर उतना ही ज़्यादा मटेरियल का खर्चा होगा। अब आता बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट is the process of grouping the components of cost under a common designation on the basis of similarities of nature, attributes or relations. It is the process of identification of each item and the systematic placement of like items together according to their common features. इसका मतलब है बच्चों, आसान शब्दों में कहे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बिजनेस के अलग अलग खर्चों को उनकी समानता, सिमिलरिटीज, प्रकृति, नेचर और गुण के आधार पर अलग अलग समूह ग्रुप में बांटने की एक प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए मुख्य बिंदु आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले यह देखा जाता है कि कौन सा खर्चा किस तरह का है। ग्रुपिंग, एक जैसे स्वभाव वाले खर्चों को एक ही नाम या कैटेगरी के नीचे रखा जाता है। सिस्टमेटिक प्लेसमेंट, यह खर्चों को सही जगह पर रखने का एक व्यवस्थित तरीका है ताकि हिसाब किताब में आसानी हो। सबसे पहला बच्चों बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। ए material cost. It is the cost of material of any nature used for the purpose of production of a product of a service. It includes cost of procurement, freight inwards, taxes and duties, insurance, etc. Directly attributable to the acquisition, trade discounts, rebates, duty, drawbacks, refunds on account of sunbed, sales tax are deducted. मटेरियल कॉस्ट का मतलब है बच्चों प्रोडक्शन में लगने वाले सामान खर्चा। इसमें टैक्स और इंश्योरेंस जुड़ता है पर डिस्काउंट माइनस होता है। बी लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज परमानेंट और टेम्पररी फॉर their services. It includes salaries and wages paid to employees. Salaries and wages include all fringe benefits like PF contribution, gratuity, ESI, overtime, incentive, bonus, ex gratia, leave, increment, wages for holidays and idle time, etc. लेबर कॉस्ट का मतलब बच्चों एम्प्लॉयज को दी जाने वाली सैलरी और वेजेस, इसमें पीएफ, बोनस, ओवरटाइम भी शामिल है। सी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट which are involved in an activity, expenditure on account of utilities, payment for bought out services, job processing charges, etc. can be termed as expenses. Expenses का मतलब बच्चों मटेरियल और लेबर के अलावा बाकी सब खर्चे जैसे जॉब प्रोसेसिंग फीस। दूसरा है बच्चों अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। पहला है प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब बच्चों या वह खर्चा है जो किसी सामान को बनाने में सीधे तौर पर लगता है। इससे आप फैक्ट्री खर्च भी मान सकते हैं। सरल शब्दों में सामान तैयार करने के लिए कच्चे माल से लेकर मशीन चलाने तक का सारा खर्च। इसका उदाहरण है बच्चों कच्चा माल जैसे कपड़ा बनाने के लिए धागा, मजदूरी, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों की सैलरी, फैक्ट्री का खर्च,
बिजली का बिल और मशीनों की मरम्मत। दूसरा है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉस्ट आर ऑफिस सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस टेलीफोन, ऑफिस रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब है बच्चों या वह खर्चा है जो कंपनी को चलाने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसका सीधा संबंध सामान बनाने से नहीं बल्कि ऑफिस के काम से होता है। सरल शब्दों में ऑफिस का मैनेजमेंट, प्लानिंग और हिसाब किताब रखने का खर्च। इसका उदाहरण है बच्चों ऑफिस स्टाफ की सैलरी, मैनेजर, अकाउंटेंट और क्लर्क का वेतन। ऑफिस का किराया जहां बैठकर कागजी काम और मीटिंग्स होती है। स्टेशनरी और फ़ोन, पेन, पेपर, इंटरनेट और ऑफिस के फ़ोन का बिल। तीसरा है बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोक्यूरिंग एन ऑर्डर आर कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट, while all costs incurred for execution of order are distribution costs. Market research expenses, advertising, sales staff salary, sales promotion expenses are some of the examples of selling cost. Transportation expenses incurred on sales, warehouse rent etc. are examples of distribution cost. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब है बच्चों इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट किसी ऑर्डर को पाने के लिए जो भी खर्चा होता है उसे सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, जैसे मार्केट रिसर्च करना, एडवर्टाइजिंग देना, सेल्स टीम की सैलरी और सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट या ऑफर्स देना। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑर्डर मिलने के बाद उसे ग्राहक तक पहुंचाने एग्जीक्यूशन के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस रेंट आदि। चौथा है बच्चों रिसर्च कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, फाइंडिंग न्यू यूजर्स फॉर नॉन प्रोडक्ट्स, सॉल्विंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स arising in manufacturing and application of products etc. रिसर्च कॉस्ट का मतलब है बच्चों जब कंपनी कुछ नया खोजने पर पैसा खर्च करती है तो उसे रिसर्च कॉस्ट कहते हैं। इसमें शामिल है नया प्रोडक्ट या बनाने का नया तरीका ढूंढना, पुराने प्रोडक्ट्स या मशीनों में सुधार करना, मौजूदा प्रोडक्ट्स के नए इस्तेमाल ढूंढना, मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली तकनीकी समस्याओं को सुलझाना। पांचवा है बच्चों डेवलपमेंट कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस विच बिगिंस विथ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टू प्रोड्यूस अ न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट और टू एम्प्लॉय a new or improved methods and ends with commencement of the production of that product or by that method. डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब है बच्चों रिसर्च के बाद जब उस जानकारी को हकीकत में बदलने की बारी आती है तब डेवलपमेंट कॉस्ट शुरू होती है। यह तब शुरू होती है जब कंपनी नए प्रोडक्ट को बनाने का फैसला ले लेती है। इसका काम तब खत्म होता है जब उस प्रोडक्ट का कमर्शियल प्रोडक्शन उत्पादन शुरू हो जाता है। आसान शब्दों में रिसर्च के आइडिया को फैक्ट्री तक ले जाने का खर्चा। तीसरा है बच्चों अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी। सबसे पहला है बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट सम कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड irrespective of changes in the production volume. These costs are called as fixed cost. The feature of this cost is that the total cost remains same while per unit fixed cost is always variable. फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों यह वह खर्चा है जो उत्पादन कम हो या ज़्यादा हमेशा एक जैसा फिक्स्ड रहता है। आसान भाषा में अगर आपने फैक्ट्री में ताला भी लगा दिया तो भी यह खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। इसका उदाहरण है बच्चों रेंट, परमानेंट स्टाफ की सैलरी, इंश्योरेंस। इसका खास बात है बच्चों टोटल में यह स्थिर रहता है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है पर यूनिट लागत कम होती जाती है। दूसरा है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। दिस कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर, दैट इज दे चेंज अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन
their variability is in the same proportion to the production variable cost per unit remains same, but in totality they vary according to the quantity of production. वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है बच्चों यह लागत उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती रहती है। आसान भाषा में ज़्यादा माल बनाओगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम बनाओगे तो कम। इसका उदाहरण है बच्चों रॉ मटेरियल, लेबर वेजेस, पैकिंग का खर्चा। इसका खास बात है बच्चों पर यूनिट यह समान रहती है लेकिन टोटल उत्पादन बढ़ने पर बढ़ जाती है। तीसरा है बच्चों सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर्टेन कॉस्ट आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। दिस कॉस्ट आर नाइदर टोटली फिक्स्ड nor totally variable. Maintenance cost, supervisory cost, etc. are examples of semi-variable costs. These costs are also called as stepped costs. सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों यह लागत ऐसी है जो कुछ हद तक फिक्स्ड होती है और एक सीमा के बाद वेरिएबल हो जाती है। इसे स्टेप कॉस्ट भी कहते हैं। आसान भाषा में इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के गुण होते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों बिजली का बिल। एक न्यूनतम किराया फिक्स्ड है, फिर आप जितनी यूनिट जलाएंगे उतना बढ़ेगा। टेलीफोन बिल, मेंटेनेंस का खर्चा। चौथा है बच्चों अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी। पहला है नॉर्मल कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड एट a given level of output in the conditions in which that level of output is normally attained. It is a part of cost of production. नॉर्मल कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों ये वो खर्चा है जो एक लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मल कंडीशन में होना ही चाहिए। मतलब अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है तो इतना खर्चा तो आएगा ही। इसका की पॉइंट्स है बच्चों ये प्रोडक्शन कॉस्ट का एक जरूरी हिस्सा होता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों मान लीजिए आप एक टेक्सटाइल मिल चला रहे हैं, कपड़ा बुनते वक्त थोड़ा बहुत धागा तो वेस्ट होगा ही, इसे हम नॉर्मल लॉस कहते हैं और इसका खर्चा नॉर्मल कॉस्ट में जुड़ता है क्योंकि ये अनएवॉइडेबल है। दूसरा है बच्चों एब नॉर्मल कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट in the conditions in which that level of output is normally attained. It is charged to costing profit and loss account. Abnormal cost का मतलब बच्चों ये वो खर्चा है जो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होना चाहिए था। ये तब होता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड या गलती हो जाए। इसका की पॉइंट्स है बच्चों इस खर्चे को हम प्रोडक्शन की कॉस्ट में नहीं जोड़ते बल्कि इसे सीधे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों वही टेक्सटाइल मिल का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर फैक्ट्री में आग लग जाए या मशीन्स की लापरवाही से बहुत सारा कपड़ा खराब हो जाए तो यह अब नॉर्मल है। इस नुकसान का खर्चा हम कस्टमर से नहीं वसूल सकते इसलिए इसे एब नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। पांचवा है बच्चों अकॉर्डिंग टू कंट्रोल एबिलिटी। पहले बच्चों controllable cost. When cost can be changed in accordance with the decisions and the needs of the cost, they are considered to be controlled. In simple, that cost which are under control of the management is controllable cost. For example, all direct costs including direct material, direct labor and some of the overhead expenses. Controllable cost का मतलब है बच्चों ये वो कॉस्ट है जिन्हें मैनेजमेंट के डिसीजंस या ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। सीधा शब्दों में जो खर्चे मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं वो कंट्रोलेबल है। आसान भाषा में अगर आप चाहे तो इस खर्चे को कम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों सारे डायरेक्ट कॉस्ट जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। अगर प्रोडक्शन कम करनी है तो आप मटेरियल कम खरीदेंगे तो खर्चा कंट्रोल हो गया। दूसरा है बच्चों अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इट रेफर्स टू अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और कंट्रोल्ड इन अकॉर्डेंस विद द बिजनेस ओनर्स प्रेफरेंस और नीड्स। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ द बिल्डिंग। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब बच्चों
ये वो कॉस्ट होते हैं जिन्हें बिजनेस ओनर के प्रेफरेंस से ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आसान भाषा में ये वो खर्चा है जो आपको देने ही पड़ेंगे चाहे आप कोई भी डिसीजन ले ले। इसके एग्जाम्पल का बात करें तो बच्चों, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, अगर आपने बिल्डिंग रेंट पर ली है तो रेंट तो देना ही पड़ेगा चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, इससे आप तुरंत कंट्रोल नहीं कर सकते। छठा है बच्चों अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। बच्चों मैं इस सबका पॉइंट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं इसका से मतलब समझा दे रहा हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का, ठीक है। पहला है बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है ये वो कॉस्ट है किसी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट जैसे कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस के साथ कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई की जा सकती है। आसान भाषा में ये वो खर्चा है जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में लगा है। इसका एग्जांपल है बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, जैसे एक चेयर बनाने में लगी लकड़ी, वुड। डायरेक्ट लेबर वो कारपेंटर जिसने वो चेयर बनाई है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसी खास डिजाइन के लिए किया गया रॉयल्टी या हायर चार्जेस। दूसरे बच्चों इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है बच्चों ये वो कॉस्ट है जो किसी एक स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, इसे हम ओवरहेड्स भी कहते हैं। आसान भाषा में ये वो खर्चे हैं जो पूरी फैक्ट्री ऑफिस के लिए होते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए नहीं, ने सब प्रोडक्ट्स में बांटना अपोषण पड़ता है। इसका एग्जाम्पल बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल, मशीन को साफ करने वाला कपड़ा, ऑयल या लुब्रिकेंट्स। ये हर प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा लगता है पर गिनना मुश्किल है। इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का वॉचमैन या सुपरवाइजर की सैलरी, ये पूरी फैक्ट्री की देखरेख करते हैं, किसी एक चेयर का नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस और लाइट का बिल। सातवें बच्चों अकॉर्डिंग टू टाइम। बच्चों मैं इसका भी पॉइंट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं सिर्फ इसका मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब बच्चों जैसा कि नाम से ही पता चलता है हिस्ट्री, ये वो कॉस्ट है जो हो चुकी है। इसका डेफिनेशन है बच्चों ये वो खर्चा है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस देने के बाद एक्चुअली इनकर होता है। इसका की पॉइंट है बच्चों इसका पता तब चलता है जब काम पूरा हो जाता है, इससे एक्चुअल कॉस्ट भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों मान लीजिए आप पिछले महीने 100 चेयर्स बनाए और उनका टोटल बिल 50,000 रुपया आया, तो ये 50,000 रुपया आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है क्योंकि ये खर्चा हो चुका है और आपके पास इसका रिकॉर्ड है। इसका लिमिटेशन है बच्चों इसे पोस्टमार्टम एनालिसिस कहा जाता है क्योंकि यह खर्चा होने के बाद बताता है कि क्या हुआ, इससे हम खर्चा होने से रोक नहीं सकते। दूसरा है बच्चों प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों ये वो खर्चे हैं जो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही एडवांस में कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। इसका डेफिनेशन है बच्चों ये कॉस्ट पास्ट फैक्टर्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखकर पहले से डिसाइड की जाती है। टाइप्स एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है कि कितना खर्चा हो सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये एक साइंटिफिकली सेट किया गया टारगेट होता है कि इतना खर्चा होना चाहिए। इसका एग्जांपल है बच्चों मान लीजिए आपने नई चेयर्स बनाने का ऑर्डर लिया, काम शुरू करने से पहले ही आपने हिसाब लगाया कि एक चेयर 500 रुपया में बननी चाहिए, तो ये 500 रुपया प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम एक्चुअल खर्चे को इससे कंपेयर कर सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आठवें बच्चों अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। पहला है बजटेड कॉस्ट। इसका मतलब बच्चों ये एक एस्टिमेट अंदाजा होता है जो मैनेजमेंट आने वाले समय फ्यूचर पीरियड के लिए बनाती है। इसका की पॉइंट है बच्चों ये पूरे डिपार्टमेंट
या पूरी कंपनी के लिए एक टोटल अमाउंट के रूप में होता है। इसका एग्जाम्पल बच्चों, मान लीजिए आपने साल के शुरू में प्लान किया कि इस साल हमारा टोटल मार्केटिंग खर्चा 5 लाख रुपया होगा, तो ये 5 लाख रुपया आपकी बजटेड कॉस्ट है। ये आपको एक लिमिट देता है कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। दूसरा बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका मतलब बच्चों ये भी एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, लेकिन यह बहुत ही साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से निकाली जाती है। इसका की पॉइंट है बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा पर यूनिट एक यूनिट की बात करती है। ये बताती है कि परफेक्ट कंडीशंस में एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आना चाहिए। इसका एग्जांपल है बच्चों, वही मार्केटिंग एग्जांपल ले तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ये बताएगी कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग पर 10 रुपये का खर्चा होना चाहिए। इसका साइंटिफिक बेस है बच्चों, साइंटिफिक बेस इससे निकालने के लिए इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स एनालिसिस करते हैं कि कितना मटेरियल और कितना वक्त लगना चाहिए। अब आता बच्चों अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट डिसीजंस। पहला बच्चों कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट का मतलब बच्चों या वह पैसा है जिससे हम बिजनेस में एसेट्स खरीदने के लिए खर्च करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बिजनेस की कमाई करने की क्षमता को बढ़ाना होता है। यह खर्चा बार बार नहीं किया जाता। इसका मुख्य बिंदु है बच्चों या भविष्य में मुनाफा कमाने के लिए किया गया निवेश से या लंबा समय तक फायदा देता है। इसका उदाहरण है बच्चों एक स्टील प्लांट के लिए नई रोलिंग मशीन खरीदना, नई फैक्ट्री की जमीन या बिल्डिंग खरीदना। दूसरा है बच्चों रेवेन्यू कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों यह वह खर्चा है जो बिजनेस को रोजाना चलाने और उसकी कमाई की क्षमता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसका मुख्य बिंदु है बच्चों यह खर्चा बिजनेस के रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी है या कम समय जैसे 1 साल के भीतर खत्म हो जाता है। इसका उदाहरण है बच्चों फैक्ट्री के मजदूरों को दी जाने वाली वेजेस, मशीनों की डेप्रिसिएशन या उनकी मरम्मत का खर्चा, बिजली का बिल या रॉ मटेरियल खरीदना। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट डिसीजन पहला है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों जब कोई कंपनी एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त यूनिट बनाती है तो उस एक यूनिट को बनाने में जो भी अतिरिक्त खर्चा आता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों मान लीजिए आपकी कंपनी 10,000 पेन बनाती है, कुल खर्च 25,000 रुपया आता है। अब अगर आप 10,001 वह पेन बनाते हैं और कुल खर्च 25,020 रुपया हो जाता है तो वह एक्स्ट्रा 20 रुपया आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। इसका मुख्य बात है बच्चों इससे अक्सर परिवर्तनीय लागत वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यह उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ती है। दूसरा है बच्चों डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसका मतलब है बच्चों जब मैनेजमेंट के पास 2 विकल्प ऑप्शंस हो तो उन दोनों विकल्पों के कुल खर्च के बीच जो अंतर डिफरेंस होता है उसे डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। यह कब काम आती है? किसी नए प्रोडक्ट को शुरू करना या बंद करना, सामान खुद बनाना या बाहर से खरीदना, मेक और बाय, किसी एक्सपोर्ट ऑर्डर को स्वीकार करना या ना करना। इसका उदाहरण है बच्चों अगर आप मशीन ए से काम करते हैं तो खर्च 1 लाख रुपया आता है, लेकिन मशीन बी नई टेक्नोलॉजी से काम करने पर 1,20,000 रुपया आता है। यहाँ 20,000 रुपया के अतिरिक्त राशि डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएगी। तीसरा है बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है बच्चों जब आपके पास 2 विकल्प हो और आप एक को चुनते हैं तो दूसरे सबसे अच्छे विकल्प से होने वाला जो फायदा आपने छोड़ दिया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसका उदाहरण है बच्चों अगर आपके पास 1 लाख रुपया है आप उसे बिजनेस में लगा सकते हैं या बैंक में एफडी करा सकते हैं। अगर आप बिजनेस चुनते हैं तो एफडी से मिलने वाला ब्याज आपकी अवसर लागत होगी। याद रखें यह कागजों या अकाउंट्स में नहीं लिखी जाती लेकिन फैसला लेने के लिए बहुत जरूरी है। चौथा है बच्चों रिप्लेसमेंट कॉस्ट।
रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों, यह भविष्य की तैयारी से जुड़ी लागत है। आसान भाषा में किसी पुरानी मशीन या एसेट को आज की तारीख में वैसी नई मशीन से बदलने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ेगा उसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों, आपने 5 साल पहले एक मशीन 50,000 रुपया में खरीदी थी, आज उसे बदलने के लिए 80,000 रुपया चाहिए, तो 80,000 रुपया आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ना कि पुरानी कीमत। याद रखें, यह मैनेजमेंट को यह तय करने में मदद करती है कि पुरानी मशीन को रिपेयर कराए या नहीं खरीदे। पांचवा है बच्चों, इम्प्यूटेड कॉस्ट नोटेशनल कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट नोटेशनल कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों, यह वह खर्चा है जो अक्सर में जेब से नहीं जाता लेकिन बिजनेस की असली स्थिति जानने के लिए जरूरी है। आसान भाषा में ऐसी लागत जो असल में कैश में नहीं चुकाई जाती क्योंकि मालिक खुद ही वह रिसोर्स दे रहा है। इसका उदाहरण है बच्चों, अगर बिजनेस आपकी अपनी बिल्डिंग में चल रहा है तो आप किसी को किराया नहीं देते, लेकिन अगर वह बिल्डिंग किसी और की होती तो किराया देना पड़ता। उस काल्पनिक किराए को ही इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। मालिक की अपनी सैलरी भी इसका उदाहरण है। याद रखें, यह भी अकाउंट्स बुक में नहीं आती, पर इससे पता चलता है कि बिजनेस वाकई में प्रॉफिट दे रहा है या नहीं। छठा है बच्चों, संक कोस्ट। संक कोस्ट का मतलब होता है बच्चों, या वह पैसा है जो आप पहले ही खर्च कर चुके हैं और अब उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। मैनेजमेंट का फैसला, भविष्य के फैसले लेते समय इस लागत को नजरअंदाज इग्नोर कर देना चाहिए। इसका उदाहरण है बच्चों, आपने एक मशीन खरीदी जो अब खराब हो गई है, उसे ठीक कराने में लगा पैसा संक कॉस्ट है। अब फैसला इस पर होना चाहिए कि नई मशीन लेनी है या नहीं, ना कि इस पर कि पुरानी में कितना पैसा डूब चुका है। सातवां है बच्चों, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों, जेब से जाने वाला पैसा, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं। यह वह खर्चा है जिसके लिए आप दूसरों को चेक या कैश देते हैं। मैनेजमेंट का फैसला, इन्हें खातों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है क्योंकि ये सीधे मुनाफे को कम करते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों, कर्मचारियों की सैलरी, फैक्ट्री का किराया, रॉ मटेरियल का भुगतान और बिजली का बिल। आठवां बच्चों, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों, या वह पैसा है जो आपकी जेब से बाहर तो नहीं जाता लेकिन यह एक अवसर की लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी अगर आप अपना खुद का रिसोर्स बिजनेस में ना लगाते तो उससे आप कितना कमा सकते थे। मैनेजमेंट का फैसला, हालांकि इन्हें हिसाब की किताबों में नहीं लिखा जाता लेकिन यह जानने के लिए जरूरी है कि बिजनेस वाकई में फायदेमंद है या नहीं। इसका उदाहरण है बच्चों, अपनी खुद की बिल्डिंग में ऑफिस खोलना जिसका किराया आपको नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप उसे किसी और को किराए पर देते तो कमाई होती, या खुद की जमा पूंजी पर मिलने वाला ब्याज छोड़ देना। सो बच्चों, आज के लिए इतनी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।